انجمن ترقی اردو ہند شاخ سکھبالہ پور کے صدر جناب امتیاز اللہ خان کاشفی صاحب نے ایک شاندار اجلاس یہاں پر منعقد کیا. بچے کا تعلق جو ہے چنتاپوری سے ہے. ان کے والد جو ہے ایک بہت صوفی ٹائپ کے شخص ہیں, وہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں. جناب نواز پاشا, میں ان کے والد صاحب کو بلانا چاہتا ہوں تاکہ وہ آئیے. صدر محترم سے اور دوسرے فرید احمد اللہ صاحب اور تعلیم سے بچی کا افتتاح فرمائیں اور اس بچی کے حق میں دعا فرمائیں. ان کے والد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. مولانا امتیاز اللہ خان صاحب کا جو ہے میں شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے دعوت دیا اور ہم لوگ ان پہ آ گئے. لوگ جو ہے جمع ہوئے تھے, خاص کر خواتین جو ہے اس جلسے میں بہت کامیاب رہے. جب تک خواتین کو جو ہے ہم لوگ آگے نہیں پڑھاتے نہیں, بچے اور فیملی سدھرتی نہیں. کامیابی کے لیے, بچوں کی تعلیم کے لیے خواتین کی برابر کی حصہ داری ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں, خاص کر چھوٹے شہروں میں, گاؤں میں جو ہے عورتوں کی جو ہے ذرا نظر اپنے اچھے نظر سے نہیں دیکھتے. میں چاہتا ہوں بحیثیت ایک اردو کا خادم, میں اردو کا خادم ہوں, کہ اپنے گھر میں جو ہے بچوں کو اردو پڑھائے اور ماحول کو اچھا کرے اور بچوں کو اسکول بھیجے. اسکول بھیج کر جو ہے ایک نتیجہ نکالیں کہ کچھ کر سکتے, ہم نے کچھ کیا. ایسا نہیں کہ دال روٹی کھلا کے بچوں کو پال دیا, بچہ بڑا ہوا, گندا ہوا, اچھا ہوا, برا ہوا, کچھ نہیں. یہ نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں ہم لوگ جو ہے بہت پچھڑے ہوئے ہم لوگوں کو سرٹیفکیٹ مل گئی ہے گورنمنٹ سرکار سے کہ ہم پچھڑے ہوئے ہیں, ہمیں بیکورڈ ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ ہمارے سماج ہے, ہم لوگ خود ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ کے جو ہے سیکھنا اور سمجھنا کہ دوسرا بچہ بغل میں جو ہے, بغل والا بچہ کیسا کامیاب ہوا, سامنے بڑا کیسا, تو اس سے جو ہے ایک رشک پیدا کرنا اور بچوں کو جو ہے تعلیم میں جو ہے حصہ لینے کے لیے جو آگے بڑھنا. اور خاص کر ہمارا ماحول جو ہے, ہماری اردو زبان ہے, ہماری زبان جو ہے اردو ہے, ہمارے جو ہے دینی اثاثہ, ہمارے دینی خزانے, کروڑوں بک جو ہے کتابیں جو ہے اردو کی پڑھے گی. اگر ہمارے بچوں کو ہم جو ہے اگر نہیں پڑھائے تو کون پڑھے گا؟ تو ہم لوگ مس ہو جائیں گے, ہم لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے. اور ہماری زبان مادری زبان عربی نہیں ہے, ہماری مادری زبان فارسی نہیں ہے, اور ہماری مادری زبان کنڑا نہیں ہے. اگر مادری زبان اردو ہے تو اردو پڑھانا ضروری ہے. اگر بچہ انگلش میں بھی پڑھتا ہے, انگلش اسکولوں میں,
باقاعدہ جو ہے بچوں کو ایک سبجیکٹ لے کے یا تو گھر میں بٹھا کے اس کو اردو پڑھانا. اور ہمارے لیے خاص کر مسلم بچوں کے لیے اردو بہت ہی آسان ہے، کیونکہ بچے کو عربی پڑھاتے ہیں، عربی کا قاعدہ پڑھتے ہیں، تو عربی جب پڑھ لیتا ہے تو اردو پڑھنا آسان ہے. تھوڑا اس کو گائیڈنس کر کے پڑھانا اور ہماری جو ہے بچوں کے اخلاق کو بڑھانا ہے. ہمارے اردو زبان میں ہمارے اخلاق ہے، ہماری کامیابی ہے. اگر ہمارے ننھی بچیاں، لڑکیاں خاص کر دوسرے ماحول میں چلے گئی، دوسرے زبان کے ماحول میں گئی، تو وہ سمجھ لی ہمارا نقصان ہوا، وہ بگڑ جائیں گی، بکھر جائیں گی، تو پھر اس سمٹنا بہت مشکل پڑتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلم بھائی اور ہمارے علماء حضرات سماجی اور معاشی اس کے لیے بھی جو آگے بڑھے. میں تمام علماء حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ محراب اور مسجد مت بیٹھے، آپ باہر آئیں، سماج میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بچوں کی. ان کے ماں باپ کو جو ہے نماز پڑھاتے، ان کے بچوں کی فکر کریں، دینیت کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم کے لیے بھی ان کو جو ہے آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ ہمارے امتیاز اللہ صاحب کا. اور وہ جو گونگے بچے تھے ان کو جو ہے ایک انیشیٹو لیا علی پور والوں نے، وہ بچوں کو جو ہے وہ گونگے بچے جو مکے کہتے ہیں ان کو جو ہے پڑھایا ہے. آج ایک انقلاب آیا ہے، آج وہ بچے گریجویٹ بھی پڑھ رہے ہیں، PUC 10th پاس ہوئے اور اچھی کامیابی کے ساتھ حاصل ہوئے. آج جو کچھ بچے ڈگری کر رہے ہیں بنگلور میں اور کچھ بچے علی پور میں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لڑکیاں بھی جو ہے اس میں جو حصہ لے رہے ہیں اور وہ بچے خود سمجھدار ہو گئے. اور اکثر جو ہے دوسرے جگہ میں نے دیکھا ہے گونگا مکہ بچہ جو ہے سوائے بھیک مانگنے کا کوئی نہیں سیکھتا، گونگا ہو بھیک دیجیے. تو ہمارے بچے اب وہ گریجویٹ ہو رہے ہیں اور PUC تک بھی پڑھے کچھ بچے، اب وہ بھیک مانگیں گے؟ یقین ہے آپ کو بھیک مانگیں، مر جائیں گے بھیک نہیں مانگیں گے، کچھ بھی کام کر لیں گے. اسی لیے کہیں بھی جو ہے معذور بچے ہے تو ان کو پڑھائیں، فائدہ ہے. مجھے یہاں اگر دلی مسرت ہو رہی ہے یہ کہنے کے لیے کہ ضلع چکبالہ پور کے انجمن ترقی اردو ہند شاخ چکبالہ پور کے صدر جناب امتیاز اللہ خان کاشفی صاحب نے ایک شاندار اجلاس یہاں پر منعقد کیا. اس میں تقریباً 110 طلباء اور طالبات کو جنہوں نے امتیازی کامیابی حاصل کی اردو میں، ان تمام کو یہاں انجمن ترقی اردو ہند کی جانب سے میڈل، مومنٹو، سرٹیفکیٹ سے نوازا. اور چنتامنی کی ایک بچی جس نے 625 نمبرات لیے تھے، اسے ہم بنگلور میں بلا کر نواز نہیں سکے تھے، مگر اللہ کا فضل و کرم کہ ہم نے جو کامیاب طلبہ طالبات جو کرناٹک کے 22 میں 3 مسلمان تھے طالبات جنہوں نے 625 کو 625 مارکس لیے تھے، ان میں سے 3 مسلمان بچوں نے بھی 625 پورے یعنی 100% اسٹیٹ ٹاپرز میں تھے. اس میں ایک بچی شگفتہ نام کی سرسی سے تھی جو شیموگا ڈسٹرکٹ کے، ایک بچہ بیجاپور سے تھا، ایک آپ کے ٹمکور کا تھا عادل. ہم نے ان تمام بچوں کو بلا کر وہاں پر بنگلور میں 5000 روپے کا تحفہ بھی دیا اور انہیں بھی میڈل وغیرہ سے نوازے. عادل اس وقت آ نہیں سکے تھے، ان کے والد آئے تھے اور ان کے والد کو ہم نے حتی المقدور جس طریقے سے نوازنا تھا اس طریقے سے نوازا. ہماری انجمن ترقی اردو ہند کی بالخصوص یہ تمنا ہے کہ کرناٹک میں ہمارے بچے اچھے سے اچھے امتیازی نمبرات حاصل کر کے کامیابی حاصل کرے اور اپنے محلے کا نام، اپنے والدین کا نام، اپنے شہر کا نام، اپنی ریاست کا نام کامیاب فرمائے اور اسے نمایاں فرمائے. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج یہاں پر ہوئی. یہاں پر تقریباً 90 سے زیادہ نمبرات جنہوں نے حاصل کیے ہیں، اس میں 110
कामयाब तलबा और तालिबात को मोमेंटो, मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मैं चाहता हूं कि कर्नाटक के हर ज़िले में इस तरीके के इजलास होते रहे। हमारी बदकिस्मती है कि बहुत से उर्दू अदब से वाबस्ता लोग उर्दू से दूर भागते हैं। जैसे आपके टुमकुर की ही अगर मैं बात करूं तो इकबाल साहब को मैंने सदर बनने और कुछ काम करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं दिया और काम भी नहीं किया। उसके बाद मैंने ताज को बुलाकर ताज से कहा और ताज को जिम्मेदारी दी, उन्होंने भी वहाँ तक वो आगे नहीं आए। आप आज की पूरी सीढ़ी को एक बनाकर ताज को और इकबाल साहब को पहुँचाएं ताकि उन्हें पता चल सके कि उर्दू के सिपाही कैसा काम कर सकते हैं। यहाँ पर चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में जो काम हुआ है, आप यकीन मानिए इम्तियाज़ुल्लाह खान साहब काशिफी जो है मौलाना, उनकी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद, सदाए हिंद उनकी अपनी यूट्यूब चैनल है, उसके बावजूद वो हमारी अंजुमन के ये आज जो इजलास हुआ है, ये 5वां जलसा हुआ है 2.5 साल में। इस तरीके से जिसके दिल में मोहब्बत होती है वो काम कर जाते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ हमेशा, हमारे एक मरहूम दोस्त जनाब शेदा रुमानी साहब रायचूर से, उनके 4 मिसरे मुझे बहुत ही पसंद हैं। कहता है कि वो कहते हैं कि के लिए जिंदा हूँ, फिक्र एहसास की खुशबू के लिए जिंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए जिंदा हूँ, कौन किसके लिए जिंदा है मुझे क्या मालूम, मैं जो जिंदा हूँ तो उर्दू के लिए जिंदा हूँ। हमारा ये सेवा हो गया है कि हम जो भी काम करते हैं उर्दू की बका के लिए कर रहे हैं। यहाँ हमारे तरफ पास चारों तरफ से यलगार होते हैं, चारों तरफ से दुश्मन बढ़ रहे हैं। इसलिए हम अगर हमारी अंजुमन से एक पावर बनाएं, हर आदमी उर्दू का सिपाही बनकर उसका मेंबर बने और हमारे कर्नाटक में हज़ारों की तादाद में मेंबर बने, तो हुकूमतें हमारे सामने घुटने टेक सकती हैं। हम चाहते हैं मगर हमारा साथ बहुत कम लोग दे रहे हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि हमारे तमाम अहबाब जो उर्दू के मतवाले हैं वो उर्दू के लिए काम करें, उर्दू की खिदमत करें, अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटा उर्दू पढ़ाएं। भले हमने ये नहीं कहते कि भाई उर्दू में मत, आप उर्दू में ही पढ़ाओ, दूसरी स्कूलों में मत पढ़ाओ, आप इंग्लिश में पढ़ाओ, कन्नड़ा में पढ़ाओ, मराठी में पढ़ाओ, तमिल में पढ़ाओ, जो ज़बान आपको अच्छी है उस ज़बान में पढ़ाओ, मगर उर्दू के लिए 1 घंटा दिन में जहाँ अरबी तालीम देते हैं वहाँ हमारे बच्चों को तालीम दें, क्योंकि हमारे दीन का पूरा असासा जो है वो उर्दू में है। अगर हमारे दीन का असासा पढ़े बगैर वही ख़त्म हो गया तो हमारे आने वाली नस्लों में किसी को कोई चीज़ मालूम नहीं रहेगी, ना नात का माना मालूम होगा, ना हमद का माना मालूम होगा, ना मोजिज़ा किसको कहते हैं वो मालूम होगा। इसलिए हमारे बच्चों से मेरी मुखलिसाना अपील है कि वो कम से कम 1 घंटा उर्दू ज़रूर पढ़ें और आने वाले अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाएं। शुक्रिया। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ज़िला चिकबल्लापुर और सदाए हिंद उर्दू के ज़ेर एहतमाम में आज हमारे यहाँ चिकबल्लापुर के सैलानी शादी महल में एक SSLC और PUC में नुमाया इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले ज़िले सतह पर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के चिंतामणि, सिलगट्टा, बागेपल्ली, गुड़ीबंडा, गौरीबिदनूर, अलीपुर, चिकबल्लापुर से हमारे मुस्लिम तलबा और तालिबात का एक तहनीती इजलास मुनक़िद किया हुआ था, जिसमें माशाअल्लाह कसीर तादाद में तकरीबन 150 बच्चे शरीक रहे और उनके वालिदैन भी शरीक रहे। काफ़ी बड़ी तादाद में जो है जलसा यहाँ मुनक़िद रहा। तलबा तालिबात को तहनीती तौर पर जो है उनका एजाज़ किया गया, एक सर्टिफिकेट और एक मोमेंटो और उसमें एक मेडल भी बच्चों को दिया गया उनकी हौसला अफजाई के लिए। मकसद क्या है कि आज जो है असली तालीम के साथ साथ हमें अपने बच्चों को दीन पर कायम रखना, उसके साथ उर्दू से जोड़े रखने की हमारी कोशिश है।
सदाए हिंद उर्दू और अंजुमन तरक्की उर्दू की तरफ से हमारे ज़िला में मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ज़िला में असली तालीम हासिल करने वाले कन्नड़ा इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि कन्नड़ा हमारी स्टेट की ज़बान है और अंग्रेज़ी भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है हमारे बच्चों को उर्दू से लगाव पैदा करने के लिए एक हमारी मुनज़्ज़म कोशिश और तहरीक समझिए इसे, हम ज़िला भर में इसकी कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों के अंदर असली तालीम के साथ साथ जो है उर्दू की भी एक पहचान बाकी रहे। इस वक्त इस जलसे में हमारे रियासती जनरल सेक्रेटरी जनाब मुबीन मनवर साहब और नायब सदर जनाब एजाज़ अली साहब जौहरी और एक नायब सदर सैयद अशरफ साहब वगैरह तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा और भी मेहमान हमारे खुसूसी इसमें शरीक रहे ज़िला के, जिसमें उलमा इकराम का हमारा ख़ास साथ रहा मुझे, जिसमें यहाँ की जमात अहले इस्लाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जो है बहुत साथ दिया। इसके सेक्रेटरी जनाब मौलाना फ़हद साहब हैं जो जमात अहले इस्लाम के, उन्होंने भी इसमें शिरकत की। चिकबलापुर ज़िला के काजी साहब जो है अमीर काजी शरीयत मौलाना मुफ्ती मंसूर अहमद कासमी साहब दामन का, तो उन्होंने भी शिरकत किया था इसमें। मौलाना ज़ुबैर अहमद और मौलाना अब्दुल मुजीब काशफी साहब, सारे उलमा अकराम इसमें जुड़े। और हमारे रियासत के शफ़ीक़ आबिदी साहब जो अंजुमन के रियासती खाजिन हैं, वो माशाल्लाह उन्होंने इस्तकबालिया किया। और शुक्रिया हमारे ज़िला के सेक्रेटरी जो रोज़नामा सालात से जुड़े हुए हैं रिपोर्टर हैं मोहम्मद जिलानी ने शुक्रिया अदा किया। इस तरह प्रोग्राम के एक मुनज़्ज़म तरीक़े से हम लोगों ने इसे कामयाब करते हुए ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप पढ़ाइए, आप अंग्रेज़ी पढ़ाइए, कन्नड़ा पढ़ाइए, जो चाहे आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। साथ में अपने बच्चों को एक सब्जेक्ट उर्दू पढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की ज़बान करके ये जोड़ दिया गया है, ये भारत की ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है। इस ज़बान से हमारा अच्छा ताल्लुक़ात है, गैर मुस्लिम भाई भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। उर्दू ज़बान और उर्दू के इसमें जो है दीन का ख़ास असासा है, इसलिए उर्दू से एक निस्बत जोड़ने के लिए जो है इस प्रोग्राम को हमने जो है यहाँ किया है। इंशाल्लाह बारहा करते रहेंगे। ये हमारा 5वां प्रोग्राम है। इससे पहले हमने चिंतामणि, सिलगट्टा, गौरी बिंदु वगैरह में किया है। ये अल्लाह का करम है कि 5वां जलसा तकरीबन 140 बच्चे जुड़े, 140 बच्चों के माँ बाप भी जुड़े। दूसरे हमारे चिंतामणि से मोनी स्टार गौस पाशा लैंड डेवलपर, वो भी इसमें शिरकत किए थे। माशाल्लाह अच्छा कामयाब रहा हमारा प्रोग्राम। मैं मिजरार हुसैन अलीपुर से हूँ। हमें उर्दू से बहुत लगाव है पहले से। ये एक अलविया हमारा है कि उर्दू का जनाजा उठ रहा है, कोई जिम्मेदार उसको देख नहीं रहे हैं, खाली सुन रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। उर्दू अकेडमी वाले खाली शोहरा को लेकर के मुशायरे करते हैं। मुशायरे में उर्दू आने के बाद मुशायरे का एक मज़ा आता है, आता है, सुनते समझती। उसका फाउंडेशन सही नहीं हो रहा है, बहुत से स्कूल में बंद हो रहे हैं। मैं वज़ीर तालीम और वज़ीर आला और हमारे कौम के ज़िम्मेदारान से मैं अदबाना गुजारिश करता हूँ कि कम से कम अंग्रेज़ी मीडियम हो, कन्नड़ा मीडियम हो, तेलुगु मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, जो भी मीडियम हो, उस मीडियम में एक हमारा उर्दू सब्जेक्ट लाजिम करार दें तो बहुत बेहतर होता है। फाउंडेशन से आना चाहिए। सिर्फ मुशायरे तहरीर सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जब उर्दू आता है, समझने की तौफीक होती है, तब हम समझ सकते हैं। जब उर्दू ही नहीं आता तो हम क्या समझ सकते हैं, क्या खास समझेंगे। हमारे जिम्मेदारों से वो उर्दू की हिफाजत होती है, उसमें उर्दू की हिफाजत होती है, लेकिन उर्दू नहीं आती। कहाँ से आती है? उर्दू हुर्फ़ तहज्जुद से आना है। हुर्फ़ तहज्जुद जाने के लिए हर स्कूल में लाजिमी एक सब्जेक्ट का रखना बेहतर है, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम नहीं उठा सकते, आज का माहौल ऐसा बन गया है। कन्नड़ा मीडियम नहीं उठा सकते और हिंदी मीडियम नहीं उठा सकते। जो भी मीडियम हो होने दो, सारे ज़बानें हमें जाना ज़रूरी है, लेकिन उर्दू को बचा कर रहना है। हमारी मादरी ज़बान है, एक सब्जेक्ट के लिए हमारा मुतालबा है और जिम्मेदार उसको कोशिश करें तो बहुत बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज का जो प्रोग्राम हमको बुलाया गया है, अज़मतुल्लाह खान साहब मौलाना बहुत अच्छा प्रोग्राम किए हैं, उर्दू के बारे में किए हैं। उर्दू की बात जो चली है, उर्दू होना करके बिल्कुल सही है कि उर्दू की पावर और उर्दू की इज्जत क्या है। इंसान को जैसा सर है, इंसान अगर सर ना है तो थोड़ा बेकार। जैसा इस्लाम के अंदर मुसलमानों को उर्दू नहीं तो उसकी ज़िंदगी बेकार। ये बात तो है।
ये उर्दू होना बिल्कुल जरूर है। हर फर्द भी इसके ऊपर ध्यान देना, वरना अगर हमें देर करेंगे, इसके ऊपर हमारी काहिली पैदा करेंगे, तो हमें जिम्मेदार जो सियासतदाना हैं, वो जो आलिमा हैं, जो मुफ्तियाँ क़ारियाँ हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ छोड़ दिया तो इसके ऊपर चंद दिनों के बाद इसको ख़त्म कर देते, इसलिए कि इसे हर आदमी में जज्बे से इसको करना है। हमारा नाम हसीना बानो है। हमें एक वार्ड से, चिकबड़ापुर से, 2 वार्ड से, वापसंदर से, हमें वापसंदर वाले ही। ये जो हमारे बच्चों कितना 90% काट रहे हैं, वो इस बहुत खुशी की बात है कि यहाँ इम्तियाज उन्होंने चिंतामणि से आके बहुत यहाँ प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट से कहाँ पे पढ़े हुए ही 90% के ऊपर पढ़े हुए बच्चों को सभी इस तरह मेडल दे के, इस तरह उनको एक सर्टिफिकेट दे के, इसी तरह उनको बुला के उनको एक तर्जुबा उनके लिए और पढ़ने का हौसला तो है उनको, कितना भी उनको बच्चों को इतना उनके दिलों में अभी पढ़ने का हमारे मुसलमानों के बच्चों में अभी है कहने के अभी भी जाग के उन्होंने अभी अच्छी तरह से परसेंटेज लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट कुछ एक नंबर 1 बनाने की कामयाबी होने की तौफीक अता कर रही हैं। अल्लाह ताला तौफीक अता कर रहे हैं। तो हमारे इम्तियाज चिंतामणि के इम्तियाज सर को उनको हमारा इस प्रोग्राम में उन्होंने 90% अभी ज़्यादा 100% होने का तवज्जो दे के उनको इस कामों में हर एक में भी कामयाबी होने की तौफीक अदा करना अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, सारे बच्चों को सही खुशी से उन्होंने मेडल दे के खा पी के उन्हें सब जाए। इस तरह से मैं भी इससे शामिल में, मैं इस दुआ में, इस दावत में मैं भी एक यहाँ पे मुझे भी मौका मिला है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई है। अभी सभा के दिन, हर सभा के दिन कल भी आने वाला है, 100% हमारे बच्चों में कामयाबी होने की तौफीक अता फरमाए या अल्लाह। लब मुअत्तर है जिसकी खुशबू से, फिक्र रक्सा है जिसके जादू से, मेरा सारा जमाना आशिक है, मेरा सारा जमाना आशिक है, इश्क जब से हुआ है उर्दू से। तो इस तरह से इसमें चिंतामणि की तालिबा है, आफरीन ताज बिनते चांद पाशा, ये भी उर्दू की तालिबा है, ये गवर्नमेंट मीडिया कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी। ये बतुलबा भी 95 मार्क्स लेकर उनका कामयाबी हासिल की है। इस बच्ची को जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत करें। इसके साथ एक आगे आना चाहता है, बच्चों की तकलीफ है, तो मैं जो कुछ न कुछ है इमदाद करने के लिए तैयार हूँ। मैं जो है मामूली सा इंसान हूँ, छोटा कामयाब कारोबारी हूँ, छोटा आदमी हूँ, तबड़ा नहीं हूँ। मेरा दिल जो है बड़ा है तालीम के लिए। मैं अलीपुर का सबसे पहला ग्रेजुएट हूँ। मेरे साथ जो है जवाहरात का काम जब शुरू हुआ 50 आदमी थे, मैं अकेला जो और फारिग चला गया, आधी दुनिया घूम फिर के जो है कामयाब होकर आया। इसकी वजह सिर्फ तालीम है। हम क्यों पीछे रह जाए तालीम? क्या पढ़ा है हमको तालीम के पीछे रहने? आप कसम खा रहे हैं कि पान नहीं खाना जब तक मेरा बच्चा ग्रेजुएट नहीं है। एक बच्चे के इनकलाब बोल रहा हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, कसम खा लें मैं पान नहीं खाऊंगा जब तक मेरा बच्चा ग्रेजुएट नहीं होगा। मैं इंजीनियरिंग बनाऊंगा जब तक मैं कुछ खाने नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नया टुकड़ा नहीं सिलाऊंगा। तो यह होता है कुछ करने के लिए जो है माँ बाप को जो है कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे दोस्त का एक ड्राइवर है, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब है, ड्राइवर है, वो क्या है? तो वो क्या किया, उसके दिमाग में हम लोगों को देख के उसके दिमाग में कुछ आया कि मेरे बच्चों को भी इंग्लिश स्कूल में देखा तो तू अच्छा पढ़ा। तो वो सुबह 6 बजे उठता है, 6 से 10 तक जो है ऑटो चलाता है। ये जो है मिसाल इधर की कहानी नहीं है, मेरे आंखों देखा है। सुबह से 10 तक ऑटो चलाता है, 10 के बाद जो है ड्यूटी करता है ड्राइवर के साथ। आप जो है इतना मेहनत करेगा तो मर जाएगा। तो बोला कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरे बच्चों को मालूम होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो हर एक को यह जज्बा आना चाहिए। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, बीमारी नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, शायर नहीं हूँ कि आपको नसीहत करूँ।
सिर्फ तजुर्बा है मेरा कि जो भी सिद्ध किया, जो भी कुछ करना चाहा, उसे करके दिखाया। अच्छा धीरे बात सुन के क्या है, मैं पढ़ा लूंगा, पढ़ा गया नहीं गया, बच्चा स्कूल नहीं गया, मार दिया, मार बोली, तो सबसे पहले औरत बच्चों को पढ़ाए। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चों को पढ़ाएगी। अब आप तो ज्यादा मान दीजिए, बड़ी जिम्मेदारी है आपके पर, बच्चों को पालने की बड़ी जिम्मेदारी आपके पर है। माँ सिर्फ कमाई के लिए जाता है, तो बच्चों को जो है माहौल अच्छा करें ताकि बच्चे अपनी वैल्यू पढ़े, स्कूल जाए और देखें कि बच्चा पढ़ रहा है क्या इधर उधर घूम फिर के आ रहा है। ये भी अपनी जिम्मेदारी है, मेहनत का श्रेय आप ही। अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दीजिए, क्योंकि जब तक आपके बच्चों के पास तालीम नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकते। जब तालीम है तो समझिए आपके पास सब कुछ है। दुनिया हर चीज चोरी हो सकती है दुनिया में, लेकिन तालीम एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता। और तालीम से घरों में जो है ना तमाम, अगर एक वालदा अगर तालीम याफ्ता हो तो अपने सारे खानदान को संभाल सकते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, वकील बनाइए। आजकल इंजीनियरिंग में जो है ना तो और कोर्सेस आए एरोनॉटिक का। मैं देखता हूँ कि हमारे घर की बच्चियाँ आज में जो है ना कुछ बच्चियाँ एरोनॉटिक इंजीनियर हैं और वो जहाज उड़ा रहे हैं। अभी हाल ही में पिछले 10 दिन पहले मैं हवाई सफर कर रहा था तो उसमें एक 26 साल लड़की मुसलमान थी, शाइस्ता उसका नाम था। वो बड़ी पायलट थी, उसमें जो नंबर 1 पे जो पायलट होता है वो थी। और वो जो है ना मुझे बॉम्बे से दिल्ली तक का सफर कराया। और जब उसने लैंडिंग की तो लैंडिंग इतनी गजब की कि उसने कोई पता भी नहीं चला कि हमारी फ्लाइट लैंड होगी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चियाँ पायलट भी बने। और ये AI का जमाना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और इसमें भी हमारे बच्चियाँ तालीम हासिल करें और अच्छे बड़े ओहदे पर वो डॉक्टर पाए। हम तमाम को मौलाना जिस पर समाए उसको तकरीर में कह रहे थे कि हमें उर्दू सीखना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि हमारे दीन का पूरा असासा जो है वो उर्दू में है। अगर हम हमारे दीन को ही नहीं समझ पाए, पूरी दुनिया को समझकर कोई मकसद हासिल नहीं होता। यहाँ पर चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में इन तलबा को और तालिबात को जिन्होंने 100 से ज्यादा बच्चे 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, और उसमें एक बच्ची ने तो 625 के 625 नंबर लिए हैं। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, उस बच्ची का नाम जो है कर्नाटक के पूरे 22 बच्चों में उसका भी शुमार 23वां होना चाहिए था। पता नहीं वो क्यों शामिल नहीं हुआ। अब मुझे पता चला, मैंने उस बच्ची से जैसे ही आते ही बात की तो उसने कहा कि पहले जब नंबर उसके आए थे 624 थे, उसके बाद में फिर रिकैलकुलेशन में वो 625 हुए। वरना हमारे कर्नाटक के 22 बच्चे, जिनमें 3 बच्चों को, हमारे बच्चों को, हमारी कौम के 3 बच्चों को 625 की नुमायां कामयाबी हासिल हुई थी और ये बच्ची चौथी हो जाती थी। हम लोगों ने बेंगलोर में एक बहुत शानदार जलसा किया था। एक बच्ची जो थी टुमकुर से थी, एक बच्ची जो थी सिरसी से थी, एक बच्चा टुमकुर से था और एक बच्चा बीजापुर से था। उसके साथ साथ ये बच्ची भी शामिल हो जाती थी। उस वक्त हम लोगों ने वहाँ पर बुलाकर उन बच्चों को आने जाने के खर्च के अलावा 5-5 हजार रुपए भी दिए थे। ये बच्ची उन पैसों से महरूम रह गई, जिसका हमें निहायत ही गुजारिश करता हूँ कि वो मेहनत उठाकर अच्छे से अच्छा पढ़े। और हमारे एजाज साहब जौहरी, उनकी जानिब से भी 1000 रुपए
आपको अच्छी तरह पढ़ो। आइंदा क्या पढ़ने का इरादा है, क्या कर रहे हैं? कहीं एडमिशन हो गया? कहाँ? सीतामढ़ी में। अल्लाह अल्लाह कामयाब फरमाए। इस बच्ची के हाथ में आप तमाम दुआ करें। हमारे जो साबिर सईद साहब वो भी आ रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से हमारे साथी नूर मोहम्मद साहब की जानिब से उस बच्ची को वो भी 1000 रुपये पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। 3000 हो गए, 2000 कम हो गए, इंशाल्लाह और उसकी भरपाई हो जाएगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी सूरत से हो जाएगी इंशाल्लाह। शहर चिकबल्लापुर की जमात के सेक्रेटरी साहब की जानिब से हाँ 1000 रुपये से उसकी तरफ से, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उस बच्ची को सिर्फ 1000 रुपये की कमी हो गई, इंशाल्लाह वो कहीं कोई और तरीके से हो जाएगा। ये बच्ची सिविल सर्विस में जाना चाहती है और एडमिशन भी ले लिया है। अगर उस बच्ची को सिविल सर्विस में कोई भी तरीके की मदद चाहिए, किसी भी तरीके से उसे ये चाहिए, तो वो बड़े दिल के साथ, खुशी के साथ हमारे सैयद अशरफ साहब को मीर जर्रा हुसैन साहब अलीपुर की जानिब से 1000 रुपये, ये देखिए ये होता है पूरे 5000। जैसे मेरी नीयत थी वैसे उस बच्ची को 5000 मिल गए की जानिब से, यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी की जानिब से 500 रुपये, और देखिए 5000 के 500 बढ़कर भी मिल गए। आप तमाम दुआ कीजिए इस बच्ची के हक में। ये बच्ची सिविल सर्विस में आइंदा पढ़ना चाहती है। ये बच्ची के हक में दुआ तो आप करेंगे जरूर। कभी भी किसी भी तरीके की तुम्हें पढ़ने में तकलीफ हो, जरूरत हो, तो यहाँ से नंबर ले लीजिए सैयद अशरफ साहब का, इनसे मुलाकात कीजिए। ये इंशाअल्लाह जो भी तकलीफ होगी वो जरूर करने की कोशिश करेंगे। से माता रहेगा कि जब सिविल सर्विस करने आएगी, दिल्ली में पढ़ने के लिए आएगी, इसका रहना सहना, खाना पीना और सारे इंतजाम बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। हर जलसे में जो है अशरफ साहब इसी तरह जो है बच्चों की हौसला से दरख्वास्त है कि हमारे मुस्लिम लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो माहिर डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो माहिर इंजीनियर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो माहिर IAS हैं, IPS हैं, बहुत सारे माहिर लोग हैं। तो आप हजरात से दरख्वास्त है, तलबा व तालिबात से दरख्वास्त है कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, उस एम को, उस मकसद को, उस गोल को सामने रखते हुए हमारे माहिर मुसलमान लोगों में से उनसे राब्ता करें, उनसे अपना ताल्लुक कायम करें कि मैं अब ये पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, आइंदा चलकर मुझे ये बनना है, तो मैं किस तरह अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं किस तरह अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। इस एतबार से हमारे जो बड़े हैं उनसे हमारा ताल्लुक हमें जो है ये विरासत में ज़बान मिली है। जो चीज़ विरासत में मिलती है उसे हम लोग बहुत लाइट से ले लेते हैं। बाप दादा की जागीर जब मिल जाती है तो बेच के खाने में हमें तकलीफ नहीं होती। यही हाल उर्दू ज़बान का है, इसलिए कि हमें ये ज़बान विरासत में मिली है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि फिक्र एहसास की खुशबू के लिए जिंदा है, दिल में चलते हुए जुगनू के लिए जिंदा है। कौन किसके लिए जीते हैं हमें क्या मालूम, हम जो जिंदा है तो उर्दू के लिए जिंदा है। हमारे वालिद साहब मौलाना इम्तियाजुल्लाह खान साहब को देखते आ रहे हैं कि ये किस तरह से उर्दू के लिए मेहनत कर रहे हैं और बच्चों के अंदर किस तरह से जज्बा और तालीम का शौक़, उर्दू के लिए शौक़ किस तरह से पैदा करते आ रहे हैं कि हम बचपन से देख कर सीखते आ रहे हैं। और फिर तालीम हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक वाक़या किताबों के अंदर, हदीसों के अंदर आता है, हदीसों के अंदर लिखा आता है कि तालीम अगर हमारे अंदर आ गई तो दुनिया को हम हासिल कर लेते हैं।
ये वाक़या हदीसों के अंदर आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने 3 चीज़ें रखी गई। पहला दौलत को रखा गया, शोहरत को रखा गया, उसके बाद तालीम को रखा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे पहले इन तीनों चीज़ों में सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तालीम को सेलेक्ट करे। क्या वास्ते तालीम को सेलेक्ट करे? अगर ये तालीम हमारे अंदर आ गया, इल्म अगर हमारे अंदर आ गया, ये शोहरत, ये पावर, ये इज्जत ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है। इस दौर में तालीम है इमदाद मिल्लत की दवा है, खुद फासिद के लिए ये मिसले निश्त है। यानी उस दौर में ही एक सदी पहले ही हज़रत अल्लामा इकबाल ने भाप किया था कौम की हालत। कौम की हालत जो है तालीम ना होने की वजह से ये हमारी कौम में बच्चों में बेजारी, लाचारी, मुफलिसी, मजबूरी, ये तमाम बीमारी काहिली, सब बीमारियों का एक ही इलाज है, वो है तालीम। मशक्कत की मुजाहरा करके अपने उन इम्तिहानों में आला कामयाबी हासिल की। आज यकीनन वो मुबारकबाद हैं और इस तहनीती इजलास के वाकई हकदार हैं। लेकिन मैं अगर ये कहूँ तो पूरे मजमे में कन्नड़ा मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जो तलबा नुमाया कामयाबी हासिल किए हैं, वो कामयाबी उर्दू स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा हासिल नहीं किए हैं। ये हमारे लिए अफसोस की बात है, आगे आना चाहिए। हमारे जहन में हमारी पैदाइश से हमारे माँ बाप जो हमारे सरपरस्त आज यहाँ शरीक हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ, उनका जो इब्तिदाई कलमा है, उनका जो इब्तिदाई जुबान से निकलना है, वो उर्दू फसाहत के साथ निकलना है। लेकिन हमने अपने घरों में उनको कन्नड़ा इंग्लिश से आमादा किया, तो वो तलबा इंटरेस्ट रखे कन्नड़ा और इंग्लिश मीडियम में आगे आने की, तो नुमाया नंबरात उसमें हासिल किए, लेकिन असल जो जुबान उर्दू की थी उसे छोड़ दी। तो आज इस बात का अफसोस है। मैं हमारे तालीम मैदान के जो यहाँ के अल्लाह ताला इनकी उम्र में और इजाफा करें और इनको तरक्की अता फरमाएं। इसी तरह उर्दू की बका के लिए मरते दम तक अल्लाह ताला इनकी खिदमत करता रहे और इन तबका के लिए, बच्चों के लिए भी इसी तरह हमेशा हमेशा साथ देते रहें और एक यादगार माहौल बनाए। हम तमाम की जानिब से इनका बहुत बहुत शुक्रिया सर।